Audio Jungle. Audio. آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان 24 نیوز چینل۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، برصغیر پاک و ہند میں مغل حکمرانوں نے اپنے صدیوں پر محیط دور اقتدار میں جس طرح عورتوں کی عصمتوں کو پامال کیا، شاید ہی کسی اور ملک کے حکمرانوں نے اس طرح کیا ہو۔ اب جبکہ برصغیر پاک و ہند میں بادشاہت کا سلسلہ ختم ہوئے کافی مدت ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی شہزادہ شاہی عہد کی یاد تازہ کرنے اس خطے کے باسیوں پر سوار رہا۔ خصوصاً پاکستان میں تو یہ سلسلہ تواتر سے جاری رہا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کے بعد جب بے نظیر بھٹو اپنے مرحوم باپ کے نام پر سیاست کرنے کے لیے ملک میں وارد ہوئی تو انہیں اس مشرقی معاشرے میں ایک کامیاب سیاستدان بننے کے لیے ایک مرد کے سہارے کی ضرورت تھی۔ سو خاص سے غور و خوض کے بعد انہوں نے بلوچ خاندان کے ایک جوان کو سر کا تاج بنا دیا۔ اس بلوچ مرد کا نام آصف علی زرداری تھا، جو مالی اور سیاسی حیثیت سے کسی بھی طرح بھٹو خاندان کے برابر نہ تھا، لیکن بھٹو خاندان کا داماد بننے کے بعد اس جوان نے وہ کارنامے دکھائے کہ ان کے سامنے مغلیہ سلطنت کے عیاش شہزادوں کے قصے بھی مانند پڑ گئے۔ جب بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تھی تو ان کے شوہر آصف علی زرداری جہاں مالی بدعنوانیوں اور مسٹر 10% جیسے الزامات لگتے رہے، وہاں ہوا کی بیٹیوں کے ساتھ رنگ رلیاں منانے میں بھی انہوں نے خوب نام کمایا۔ وہ شادی سے پہلے کراچی میں پلے بوائے مشہور تھے اور اب بے نظیر بھٹو کی وزارت عظمیٰ کے باعث انہوں نے اپنی اس شہرت کو ان مقامات پر کیش کروایا جہاں اس سے پہلے ان کے چیک باؤنس ہوتے رہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ مرد اول کی بدعمالیوں کے باعث وزیر اعظم ہاؤس کے اندرونی حصے میں متعدد بار پانی پت کی جنگیں بھی ہوئیں، جن میں بے نظیر پر سختی بھی کی گئی، تاہم کئی بار مرد اول کو اسلام آباد سے نکلنا پڑا اور وہ لاہور میں جا کر پنجاب کے ایک چیف سیکرٹری کی بیٹی اور کراچی جا کر وینا حیات اور دیگر دوستوں کے ساتھ غم غلط کرتے رہے۔ اپنے پہلے ایام اسیری میں ان پر سابق وزیر اعلیٰ سندھ جام صادق علی نے خصوصی مہربانیاں کی، جس کے باعث انہیں جیل میں بے نظیر بھٹو سے ملاقات کی سہولتیں فراہم کی گئیں۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے زرداری کی ان ملاقاتوں کو ویڈیو میں محفوظ کر لیا، جس کے عوض متعدد بار مراد حاصل کرتے رہے۔ بے نظیر کے دوسرے دور میں فوزی علی کاظمی، ذوالفقار مرزا اور دیگر افراد زرداری کے دوست رہے۔ سابق مرد اول آصف علی زرداری نے جہاں کرپشن اور بدعنوانیوں میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی، وہاں انہوں نے ہوس پرستی میں بھی سابقہ تمام سیاستدانوں اور حکمرانوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ڈالی ووڈ کی 1 درجن سے زائد معروف اداکارائیں، جن میں ریما، نیلی، ریشم، میرا، مدیحہ شاہ، اندلیب، لیلا، سائمہ، نرما اور لاشانہ کے علاوہ دیگر فنکارائیں اور ماڈل گرلز شامل ہیں، جن کے بارے میں یہ شواہد بھی ملے ہیں کہ شون گروپ کے سربراہ ناصر حسین شون کے بلاوے پر اسلام آباد پہنچائی جاتی تھی، جہاں نہ صرف ناصر حسین شون بلکہ آصف علی زرداری اور سابق دور حکومت کی دیگر اعلیٰ شخصیات ان کو دادے عیش دیتی رہی ہیں۔ اداکاراؤں کے عزیز و اقارب نے ان تمام سرگرمیوں کو بونڈا الزام قرار دیا، جبکہ سیاسی حلقے اس بات کا بے چینی سے انتظار کرتے رہے کہ پٹاری میں سے کب سابق حکومت کے کٹا درتاؤں کی عیاشیوں کے ثبوت سامنے لائے جاتے ہیں۔ آصف علی زرداری اور اس کے ساتھیوں کو عیاشیوں کے لیے لڑکیاں سپلائی کرنے والے گروہ کے سرگنا ڈاکٹر اعظم بیگ کا تعلق کراچی سے ہے، جس کے پاس ایک چھوٹے سے افریقی ملک سیر 11 کا ڈپلومیٹک پاسپورٹ ہے، جبکہ معروف گلوکارہ نازیہ حسن مرحومہ کے شوہر اشتیاق بیگ، جو اعظم بیگ کا بھائی ہے، کے پاس مراکش کا پاسپورٹ ہے۔ مئی 97 کو اعظم بیگ کو کراچی سے گرفتار کیا گیا، جس نے 10 صفحات پر مشتمل اپنا ایک تحریری بیان دیا، جس میں آصف علی زرداری، شون گروپ کے مالک ناصر حسین شون اور ان کے دیگر ساتھیوں کی عیاشیوں کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اعظم بیگ نے بتایا کہ یہ لوگ جن اداکاراؤں کے ساتھ عیاشیاں کرتے رہے، ان میں ریما، مدیحہ شاہ، ریشم، میرا، نیلی، اندلیب، سائمہ، ہینا، لیلا، ماروی، نتاشا، نرما اور لاشانہ شامل ہیں۔ ترجمان نے بتایا کہ اعظم بیگ لاہور، اسلام آباد اور کراچی سے تعلق رکھنے والی معروف بینکاروں کے ذریعے گروہ کو خوبصورت لڑکیاں سپلائی کرتا تھا، جو ناکائیں لڑکیاں سپلائی کرتی تھیں۔ ان میں لاہور کی مسز شمیم مرزا، بشیرہ، مسز سیما، اسلام آباد کی سریا خانم، کراچی کی مسز اقبال یوسف عرف پارو، جبکہ لاہور اور اسلام آباد کے 2 نوجوان عدنان اور کاشف راجہ سے بھی یہی کام لیا جاتا رہا۔ سابقہ وزیر اعظم بے نظیر بھٹو اور آصف علی زرداری کے بیرون ممالک میں دوروں سے چند روز قبل یہ معروف اداکارائیں اور خوبرو لڑکیاں ان ممالک میں پہنچ جاتی تھی۔ استنبول، لندن اور امریکہ میں سابقہ وزیر اعظم کے دوروں کے دوران ان اداکاراؤں کے وہاں جانے اور قیام سے متعلق تمام دستاویزی ثبوت قبضے میں لیے گئے۔ ذرائع کے مطابق آصف علی زرداری اس وقت کی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے وفد سے اچانک علیحدہ ہو کر ان خواتین کے پاس پہنچ جاتے تھے اور ناصر حسین شون بھی وہیں موجود ہوتے تھے۔ واضح رہے کہ اداکارہ ریما اور دیگر اداکاراؤں کے پاسپورٹوں پر امریکہ، ترکی اور برطانیہ کے لگے ہوئے ویزوں کے دستاویزی ثبوت ہیں۔ اسلام آباد کے میرٹ ہوٹل کے ایگزیکٹو فلور پر 6 کمرے بک کرائے جاتے تھے، جن کا آپس میں درمیانی دروازے کے ذریعے رابطہ ہوتا تھا، اور ان کمروں میں 6 خوبرو لڑکیاں
यहाँ रात बिठा दी जाती थी। आसिफ अली जरदारी मेरिट होटल के चाइनीज रेस्टोरेंट में आकर बैठ जाते थे और वहाँ पर सूप पीने के बाद स्विमिंग पूल देखने के बहाने लिफ्ट के पास आकर लिफ्ट के जरिए इस एग्जेक्टिव फ्लोर पर पहुँच जाते थे जहाँ किसी और को आने की इजाजत नहीं होती थी और वो बारी बारी उन तमाम कमरों में जाते थे। आजम बेग और इसका पूरा ग्रुप फैशन शो के नाम पर मासूम लड़कियों को लाकर इन्हें अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल करता था। आजम बेग ने अपने बयान में ये भी इंकशाफ किया कि शून ग्रुप के मालिक नासिर हुसैन के 5 से ज्यादा लड़कियों के साथ ताल्लुकात थे। अदाकारा रीमा के पासपोर्ट पर साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो के तुर्की, बरतानिया और अमेरिका के दौरों के दौरान इन ममालिक के वीजे लगे हुए हैं और पासपोर्ट पर इनके वालिद का नाम डॉक्टर अकमल खान लिखा हुआ है और इसकी तारीख पैदाइश 1971 बताई गई है। ताहम बेनजीर भुट्टो को आसिफ अली जरदारी की अय्याशियों का कोई इल्म न था। नामवर फिल्मी अदाकाराओं का रसिया अरबपति बिजनेसमैन शून ग्रुप के सरबराह नासिर हुसैन शून की हवस परस्ती ने इसकी नेक परहेजगार सलीका शुआर बीवी फरा नासिर 2 बेटों और 2 बेटियों को दरबदर करके इनकी जिंदगी जहन्नुम बना दी और रीमा के इश्क और इसरार ने नासिर हुसैन को इतना दीवाना बना दिया कि एक वक्त ऐसा आया कि वो अपनी बीवी को तलाक देने पर भी रजामंद हो गया था। पैसे की हवस का शिकार इनाम नेहाज शरीफ जादी फिल्मी अदाकाराओं को मुफ्त की लाखों आमदनी और नई नई कोठियों, कारों और बैरूनी मुमालिक के मुफ्त दौरों के लालच ने रीमा, नीली, मीरा, लैला, साइमा और रेशम को एक दूसरे का जानी दुश्मन बना दिया और मज़कूरा अदाकाराएं नासिर हुसैन की 1 मिनट की कुर्बत हासिल करने और इसे सिर्फ अपना बनाने के लिए नासिर हुसैन को इजी कस्टमर समझती थी और नासिर हुसैन का दिल जीतने के लिए इसे हर तरह से खुश करने की कोशिश करती। यहाँ ये अमर भी काबिल जिक्र है कि जाम सादी के दौरे हुकूमत में जब जाम माशूक का भी रीमा से याराना चल रहा था, उसी दौरान नासिर हुसैन ने कराची के खुले समंदर में एक बहरी जहाज किराए पर लेकर इसकी खूब सजावट करवाई, जहाँ इसने अपने एक हामी सियासी और बिजनेसमैन दोस्त के लिए नीली, रीमा और इसकी पार्टनर्स के मुजरे का एहतमाम किया, जिसके बाद जाम माशूक और नासिर हुसैन के दरमियान तसादुम हुआ जैसा माहौल पैदा हो गया था और इसके बाद रीमा को जाम माशूक के डेरे पर एक अजियतनाक सूरत-ए-हाल से भी गुजरना पड़ा, जिसके बाद रीमा 3 हफ्ते अस्पताल में जेरे इलाज रही। अलावा से जब नासिर हुसैन 24 घंटे रीमा के साथ गुजारने लगा और इसके इश्क में अपने बीवी बच्चों से लाताल्लुक हो गया, तो नासिर हुसैन की बीवी ने एक बुजुर्ग से राब्ता किया तो इन्होंने बताया कि रीमा ने मुल्तान के एक अमल के जरिए नासिर हुसैन पर काला जादू किया हुआ है। ताहम बाद में जब इसकी बीवी ने नासिर हुसैन को हकीकत से आगाह किया तो नासिर हुसैन ने रीमा के इश्क में अपनी बीवी को यहाँ तक कह दिया कि वो इसे तो छोड़ सकता है, रीमा को नहीं, जिस पर नासिर की बीवी ने इसको बच्चों का वास्ता देकर कहा कि तुम रीमा को छोड़ दो, वो पैसे की लालच में अंधी होकर हमारी जानों की दुश्मन बन गई है, तुम किसी और से दोस्ती कर लो, मुझे कबूल है, लेकिन रीमा को छोड़ दो। रीमा, नीली, साइमा, मीरा, लैला और रेशम की किसी वजह से अदम मौजूदगी या अदम दस्तयाबी पर नासिर निर्मा, लाशाना, अंदलीब, मारवी और नताशा समेत बैक वक्त 2-2, 3-3 अदाकाराओं को सिर्फ एक टेलीफोन कॉल पर तलब कर लेता, जबकि वो इन अदाकाराओं को अपने खास दोस्तों को खुश करने के लिए भी इन्हें तोहफे के तौर पर बेच दिया करता था। अक्सर औकात वो गाहे बगाहे अपनी पसंद की हीरोइनों को चाइनीज डिनर के लिए बेच दिया करता था और नासिर हुसैन की इस फराग दिली को देखते हुए मज़कूरा अदाकाराएं नासिर की एक फोन कॉल पर जरूरी से जरूरी शूटिंग अधूरी छोड़कर चली जाती थी, जबकि बाज़ औक़ात अगर नासिर बैरूने मुल्क से इन्हें कॉल करता तो वो तितलियां 12 घंटों के दौरान ही अपने सबसे कीमती स्पॉन्सर के पास उड़कर पहुंच जाया करती थी, जबकि फिल्म साजों और घर वालों को कानों कान खबर भी नहीं होती थी। रीमा, मीरा, लैला, साइमा और रेशम अक्सर औक़ात नासिर हुसैन को टेलीफोन करके और झूठा रोना रोकर अपनी सच्ची मोहब्बत का यकीन दिलाती और नासिर से गिला करती कि वो दूसरी अदाकाराओं में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है, क्या मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा नहीं करती या मुझ में दीगर के मुकाबले में कोई कमी है। 12 सितंबर 1999 को शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक आसिफ अली जरदारी के दस्ते रास और शून ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव नासिर शून ने अदाकारा रीमा को 12.5 लाख का हीरों का हार खरीद कर दिया। बताया गया कि अदाकारा रीमा काली लैंड क्रूजर में नासिर शून के हमरा एम्पायर सेंटर में वाकई कैरेट ज्वेलर्स में गई और इसने वहां से 12.5 लाख का हीरों का हार लिया। इस हार के लिए 5 लाख रुपए एडवांस दिए गए थे। ज्वेलर को 6.5 लाख रुपए के 25,000 रुपए के प्राइस बॉन्ड और 1 लाख रुपए नकद दिए गए। रीमा ने हीरों के एक और हार का ऑर्डर दिया जिसकी कीमत 21 लाख रुपए थी। दूसरे हार के लिए 8 लाख रुपए के 25,000 रुपए के प्राइस बॉन्ड एडवांस के तौर पर दिए गए। याद रहे कि नासिर शून को मुल्की खजाना लूटने के इल्जाम में अदालतों की तरफ से इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। नाजरीन अंदाजा लगाएं कि मुल्की दौलत लूट कर लुटेरों ने किन कामों पर सर्व की। फिल्म जान जान पाकिस्तान से फिल्मी करियर का आगाज करने वाली अदाकारा नूर कीनिया में नासिर शून से मुलाकात करने के बाद जुलाई 1999 में जब वापस कराची एयरपोर्ट पर पहुंची तो जराये के मुताबिक नूर के पांव सूजे हुए थे और इसे चलने में दुश्वारी पेश आ रही थी। इंतजामिया ने इसे फौरन आगा खान अस्पताल पहुंचा दिया जहां इसके एड समेत तमाम टेस्ट दिए गए। एयरपोर्ट इंतजामिया ने नूर से हेल्थ सर्टिफिकेट मांगा तो अदाकारा सर्टिफिकेट ना दिखा सकी, जिस पर एयरपोर्ट इंतजामिया ने इसे फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचा दिया। ये भी मालूम हुआ है कि नूर ने कीनिया में नासिर शून से मुलाकात करने के 5 लाख रुपए वसूल किए। वाज़ेह रहे कि कराची एयरपोर्ट पर अफ्रीका से आने वाले हर शख्स का तिबी मुआयना जरूर किया जाता है। हुरों के रूहानी पेशवा पीर
पगाड़ा के बेटे सैयद गोहर अली राशिद ने कहा कि मेरे और मेरी बीवी आसमा कमर के दरमियान इख्तलाफात आसिफ अली जरदारी ने पैदा किए। इस सिलसिले में आसिफ अली जरदारी की गैर मुसद्दका दूसरी बीवी साबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब असलम हयात कुरैशी की बेटी सानिया कुरैशी से मेरी बीवी की दोस्ती ने अहम किरदार अदा किया। वो गुज़श्ता रोज गार्डियन जज चौधरी मोहम्मद दीन बसरा की अदालत में अपने दोनों बच्चों से 2 साल की लाताल्लुकी के बाद पहली बार मुलाकात के मौका पर अखबार नवीसियों से गुफ्तगू कर रहे थे। आंसा कमर से सुलह के सवाल पर इन्होंने कहा कि जिसके ताल्लुकात आसिफ अली जरदारी के करीबी दोस्तों से हो जाएं, इससे सुलह करने से बेहतर है कि खुदकुशी कर लूं। आसिफ अली जरदारी ने मुल्क की तरह हमारी घरेलू जिंदगी भी बर्बाद कर दी और अब मेरा मसला घरेलू नहीं रहा बल्कि सियासी बन चुका है, लिहाजा हमारा मिलना मुमकिन नहीं है। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जाली करेंसी स्कैंडल में गिरफ्तार किए जाने वाले बदनाम जमानत ठग राना बनारस के फिल्म इंडस्ट्री की चंद खूबसूरत तरीन अदाकाराओं के पसे पड्डा भयानक रूप के बारे में हैरत अंगेज इंकशाफात हुए हैं, जिससे निगार खानों में हलचल मच गई और मुतलका अदाकाराओं की रात की नींदें हराम हो गई। अल अखबार के मुताबिक राना बनारस ने इंकशाफ किया है कि साबिक हुकूमत के दौर में हुकूमती जमात के अहम तरीन ओहदेदार आसिफ अली जरदारी की वजह से इसके ताल्लुकात फिल्म स्टार रीमा से कशीदा हो गए थे। एक मौका पर जब मज़कूरा शख्स ने 1.5 लाख के रेट के बरक्स रीमा को 3.5 लाख रुपए में बुक किया तो मेरे लिए ये गैरत का मसला बन गया और मैंने 4.5 लाख रुपए अदा करके रीमा को इस्लामाबाद जाने से रोक दिया। राना बनारस ने बताया कि इस वाक़े का इल्म जब जरदारी को हुआ तो वो मेरी जान का दुश्मन हो गया और मुझ पर कई कातिलाना हमले कराए। राना बनारस ने इंकशाफ किया कि इसकी बर्बादी में चंचल रीमा, कमसिन साहबा, दिलकश मदीहा और परी चेहरा साइमा का बड़ा हाथ है। राना बनारस ने बताया कि मेरे पास पैसे आने की देर थी कि लाहौर के चंद बड़े फिल्म साज दोस्तों की मार्फत ये तमाम हीरोइनें पके हुए फल की तरह मेरी झोली में आ गिरी। ये अदाकाराएं मुझसे सच्ची मोहब्बत की कस्में खाती थी। साहिबा की माँ ने मुझे अपना मुंह बोला बेटा बनाया हुआ था और मुझे अपनी बेटी के मुस्तकबिल का सहारा करार देती थी। मैंने मुतअद्दिद मरतबा एक रात की मोहब्बत के लिए साहिबा, रीमा, साइमा और मदीहा को 1.5 लाख रुपए दिए। रीमा से तो मेरी शादी की बात भी चल रही थी और मैंने इसे शादी के वादे पर हाल ही में 45 लाख रुपए मालियत के हीरो की अंगूठी लेकर दी थी। इसके अलावा मैंने रीमा के बैंक अकाउंट में 25 लाख रुपए जमा कराए थे। एक ब्रांड न्यू पजारो टोयोटा कार भी खरीद कर दी थी। राना बनारस के मुताबिक भारत की मशहूर हीरोइन रेखा से भी इसकी दोस्ती थी और गुज़श्ता साल दुबई के एक 5 स्टार होटल में रेखा के साथ इसने कई शामें गुजारी, जिनके लिए तमाम अखराजात के अलावा नकद 5 लाख रुपए भी दिए। राना बनारस ने ठंडी आह भरते हुए कहा कि मैंने अपनी तमाम जमा पूंजी फिल्म इंडस्ट्री के इन खूबसूरत चेहरों पर निछावर कर दी, लेकिन आज वो सब मुझसे दूर हैं। राना बनारस ने कहा कि गुज़श्ता 15 साल के दौरान मैंने 80 करोड़ रुपए से जायद का फ्रॉड किया, जिससे मैंने सिर्फ मुजफ्फराबाद में अपने लिए 2 कनाल की कोठी बनाई है और बाकी रकम अपनी हसरतें पूरी करने पर उड़ा दी। राना बनारस ने कहा कि इस मुल्क में हर माल बकाऊ है। बड़े बड़े सियासी रहनुमा और शराफत के लुबादों में मलबूस शख्सियात के अंदरूने खाना क्या गनौने खेल हैं। अगर इनसे पर्दा उठाऊं तो आधे से ज्यादा सियासतदान अवाम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।